السلام علیکم جی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حرم شریف سے اور زیارتوں کے لیے جا رہے ہیں۔ اس طرف سے ہم آئے ہیں، اس سائڈ پہ مسجد حرام ہے، اور اب ہم یہاں سے ہم جائیں گے زیارتوں میں، جیسے کہ غار ہرا، غار ثور اور باقی جو زیارتیں مسجد عائشہ، مسجد نمرہ وغیرہ، ان سب جگہوں پہ جائیں گے انشاءاللہ۔ اب آگے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی کتنا بڑا پہاڑ ہے، کاٹ کے نا ان کے آگے یہ اتنی دور ہوٹلز بنے ہوئے، دیکھیں سارے ہوٹلز ہیں، اور یہ اتنی دور پہاڑ ہے اتنا بڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ شارع تقویٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ متوع تقریر کرنے لگے ہیں، یہ سنیں گے ہم۔ سفر کے لیے نکلے تو سفر کی دعا پڑھ لیں تاکہ آپ کا سفر محفوظ رہے۔ آپ سب نے میرے ساتھ مل کر دعا مانگنی ہے، پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، 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 شکر الحمدللہ۔ شکر الحمدللہ۔ ایسے بان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر کا مہمان بنایا۔ ایسے بان یہاں پر انسان شہرت، دولت، حسن و جمال سے نہیں آتا، یہاں پر وہی آتے ہیں جن کو اللہ کی ذات منتخب کرتی ہے، پھر اپنے گھر کا مہمان بناتا صحیح بات۔ ہے۔ ایسے بان ہماری جس جگہ پر گاڑی کھڑی تھی اسے شارع ہجرہ روڈ کہتے ہیں، اس سے اگلا جو روڈ ہے اسے ابراہیم خلیل اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے لے کے گئے تھے، اور اللہ کے نبی نے شارع ہجرہ روڈ ہے اسی سے ہجرت کا سفر شروع کیا تھا۔ ایسے بان اسی بیت اللہ میں کفار مکہ نے تقریباً 360 بت رکھے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی عرب کی سرزمین پر تقریباً 1,24,000 پیغمبر پیدا کیے، جن کا آنے کا مقصد لا الہ کی دعوت تھی۔ یہ اللہ کے نبی کو امین اور دیانتدار مانتے تھے، سچا مانتے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے ان سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا گروہ ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، کیا تم میری اس بات کو مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی ہر بات کو مانتے ہیں، آپ امین ہیں، آپ دیانتدار ہیں، آپ سچے ہیں، ہماری امانتیں آپ کے پاس ہیں، لیکن ہم لا الہ کی دعوت کو نہیں مانتے۔ بھائی صاحبان اس وقت ابو جہل، ابو سفیان، ابو لہب جیسے یہ 11 قبیلے پڑے تھے، تو انہوں نے ایک میٹنگ بلائی اور کہا کہ یہ لا الہ کی دعوت کو کیسے روکا جائے۔ یہ والی بلڈنگ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی کو قید کر لیتے ہیں، کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی کو ملک سے باہر نکال دیتے ہیں۔ تو جو ان کا مشترکہ فیصلہ ہوا تھا، ان کا فیصلہ یہ ہوا تھا کہ توبہ نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی کو آج کی رات ہم قتل کر دیں۔ جب زمین پر انہوں نے ارادہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرش پہ اپنا ارادہ کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا اور کہا کہ جا کے میرے نبی سے کہہ دے کہ وہ آج کی رات مکہ کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر دے۔ ایسے بات جو موجود تھے، آپ نے کہا کہ اے علی، آج کی رات آپ نے میرے بستر پر سونا ہے، اور صبح اٹھ کر جو کفار مکہ کی امانتیں ہیں ان کو دے کر آپ نے میرے پیچھے مدینے آئے۔ ایسے بان جب اللہ کے نبی نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ نے آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے زمین سے تھوڑی سی مٹی لی اور اس پر سورہ یاسین کی ابتدائی آیت پڑھی اور ہوا میں بلند کر دی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار مکہ کی آنکھوں پر پٹی باندھی۔ آپ ان کے پاس سے گزر کر سیدھے اپنے یار حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ ان کو کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آج کی رات ہم نے مکہ کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر دی۔ تو بھائی صاحبان، یہ بلڈنگیں آج کی بات ہے،
आपने अंदाज़ा और इस ज़ियारत की दर्द को महसूस करना है कि जो हमारे नबी ने हमारे लिए बर्दाश्त की। तो ये उस वक्त नकीलों वाले पहाड़ थे, ये सड़कें अब बनी हैं। और हज़रत बकर सिद्दीक, क्योंकि उस वक्त कुफार मक्का ने चप्पे चप्पे पे पहरा लगाया हुआ था। दो रास्ते थे, एक मदीने की तरफ जा रहा था, एक गारे सौर की तरफ। तो यहाँ पर अल्लाह के नबी ने पैदल हिजरत का सफ़र शुरू किया। अल्लाह के नबी के पाँव मुबारक चलते चलते जख्मी हो गए। तो हज़रत बकर सिद्दीक ने आपको अपने कांधों पर बिठाकर इस गार के ऊपर तक ले गए। ऐसा मान इस गार की जो हाइट है वो तकरीबन 3500 फुट बुलंदी सतह समुंदर से। इसमें चढ़ने में मैक्सिमम 4 से 4.5 घंटे टाइम लगता है, क्योंकि इस पहाड़ पर सीढ़ियाँ वगैरह नहीं बनी, वैसे ही पहाड़ पे जैसे रास्ता बना होता है ऐसे ही बना था। तो हज़रत बकर सिद्दीक ने आपको अपने कांधों पर बिठाकर इस गार के ऊपर तक लेके गए और गार के अंदर गए। सबसे पहले हज़रत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गार के अंदर गए। आपने अपने अमामा शरीफ से उस गार की सफाई, जो एक सुराख बाकी बच गया था, आपने वहां पर अपनी एडी मुबारक रखी और अल्लाह के नबी आपकी गोद में आराम फरमाने लगे। जहां पर आपने एडी रखी थी वहां से एक सांप ने आपको डसना शुरू कर दी, क्योंकि सांप ने भी अल्लाह से दुआ मांगी थी कि या बारी ताला, मौत तो सबको आनी है, मुझे मौत उस वक्त देना जब मैं आपके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करूं। ऐसे वक्त सांप के डसने की वजह से हज़रत बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आ गए और वो आंसू आपके चेहरे अनवर पर पड़े। तो आप नींद से बेदार हुए और पूछा, है अबू बकर, क्या घर की याद आ रही है, बीवी बच्चों की याद आ रही है, मालो दौलत की याद आ रही है? तो उन्होंने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे किसी मूजी चीज़ ने डस लिया है, जिसके डसने की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो अल्लाह के नबी ने उनके पाँव पर अपना लुआब दहन लगाया और पूछा, अबू बकर, अब दर्द कैसा है? तो उन्होंने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे कोई दर्द हुआ ही ना हो। साहबान, यहाँ पर हज़रत बकर और अल्लाह के नबी ने 3 दिन 3 रातें यहाँ क़याम किया। हमारी कुछ ही देर बाद पहली ज़ियारत आ रही है जिसका नाम है जबल सौर, गारे सौर। जबल अरबी में पहाड़ को कहते हैं, सौर बैल की तरह दिखते हैं। यहाँ पर हम नीचे उतरेंगे। ऐसे बान आप मेरे साथ नीचे उतरेंगे। प्लाट है, प्लाट में उस थोड़ा सा बयान है, बयान करने के बाद दुआ मांगेंगे और फिर गाड़ी में आ जाएंगे ताकि हम अगली ज़ियारतों के लिए रवाना हो सके। तो ऐसे बान गाड़ी का नंबर नोट कर लें, 1866 गाड़ी का नंबर है, 1866। जब मैं 1866 वाले हाजियों को आवाज़ दूँ तो आपने मेरे पीछे आना और मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। और मेरा नाम सज्जाद अहमद है। जब आप नीचे उतरेंगे तो गाड़ी की तस्वीर वगैरह बनाना चाहते हो तो बना लें। हम एक ग्रुप की शक्ल में जाएंगे और ग्रुप की शक्ल में वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश होता है। एक प्लाट में हम ठहरेंगे, उसके बाद कोई हाजी दाएँ बाएँ ना जाए, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ने में मैक्सिमम 4 से 4.5 से 5 घंटे लगती है। अगर किसी हाजी ने जाना हो, वो फजर की नमाज पढ़कर अपने होटल से टैक्सी करवाए। टैक्सी आपको यहाँ पर उतारेगी, आपके पास कुछ खाने पीने का पानी वगैरह हो, फिर आप ऊपर जाएं। इसका तरीकाकार यही है कि टैक्सी आपको यहाँ छोड़ दे, आप ऊपर जाएं, जब वापस आए दोबारा टैक्सी करवा के फिर आप हरम या अपने होटल में जाएं। जैसे ही गाड़ी हमारी रुकेगी, पार्किंग करेगी, तो इंशाल्लाह आप सबसे मेरे साथ नीचे उतरना है और जब वापस आना है तो तमाम हाजियों ने अपनी अपनी सीटों पर बैठना है। वो कुबरी सी बनी हुई है। ये आप गौर करें, ये जैसे ऊँट का और बैल का कुहान नहीं होता, ये पहाड़ उस तरह कुहान था। ये कुहान के ऊपर वो बना हुआ है ना। हाँ, ये कुहान का छोटा सा कुहान बने हुआ है, 2 नहीं है, वो एक ही है, एक बड़ा एक छोटा सा। हाँ, वो बड़ा वाला जगह हमारी सही गाड़ी लगी। जैसे कि मक्का शहर वादी में है, तो ये भी वही पहाड़ है। चल देखें जी, ये जबल सौर है। ये वो पहाड़ी है जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ रुके थे। इसका ये जो बिल्कुल टॉप है जहाँ पे ये, अगर रोज़ घूम कर सकूँ, ये है वो जगह जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ छुपे थे कफ़ार से। ये है जी जबल सौर और यहीं पे है वो गार।
तो अबू जहल ने मक्का में ऐलान कर दिया कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतला देगा उसको लाल 100 रंग के ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। उस वक़्त का जो दौर था वो आलम जहालत का दौर था, तो नजूमियों ने अपने अपने इल्म के हिसाब से अंदाज़ा लगाया। किसी ने कहा कि अल्लाह के नबी कहाँ जगह है, किसी ने कहा किसी जगह पर है, किसी ने कहा किसी जगह पर है। एक ने कहा कि अल्लाह के नबी इस गार में मौजूद है। जब कुफार मक्का अपना लश्कर लेकर यहाँ पहुँचते हैं तो उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला मकड़ी को हुक्म देते हैं, उसने गार के आगे जाले को बुना और ये जो कुश्ती की हम नस्ल देखते हैं इसने उस जाले के ऊपर अंडे दिए। जब कुफार वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि गार के आगे जाला बना हुआ है, कबूतरी ने अंडे दिए हुए हैं। ऐसे लगता है कई सालों से इस गार में कोई गया ना। वो ये देखकर मायूस होकर वो वापस आ जाते हैं। और हज़रत बकर सिद्दीक़ की बेटी हज़रत अस्मा बिन्त बकर सिद्दीक़ वो रात के वक़्त आपके लिए यहाँ पर खाना लाया करती थी। आपका बेटा अब्दुल्ला बिन अबू बकर सिद्दीक़ वो कुफार मक्का के साथ रहता, जो वो प्लान बनाते रात को आके अल्लाह के नबी को वो सारा प्लान उनको बताता। और हज़रत बकर का एक गुलाम था जिसका नाम आमर बिन फहीरा, वो मक्का से 2 ऊँटनियाँ लेके आए जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत बकर ने फिर मदीने की तरफ सफ़र शुरू किया। तकरीबन आप 21 दिन बाद मदीना शरीफ पहुँचे, जहाँ और उस मस्जिद का नाम है मस्जिद कुबा। अल्लाह के नबी सहाबा इकराम के साथ बैठे थे मस्जिद नबवी। सहाबा इकराम ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मक्का के लोग बेहतर हैं, उनके पास हरम है, उनका जब भी करते हैं वो उम्रा करते हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि आपके पास मस्जिद कुबा है, जब आप यहाँ से 2 नफल पढ़ेंगे तो आपको बड़े उम्रे का सवाब मिलेगा, वाजिब उम्रे का। यहाँ पर अल्लाह ताला जिसका चाहे कबूल करे या ना करे, वहाँ पर अल्लाह के नबी ने कहा वो आपका वाजिब उम्रा। तो लिहाजा आप हाजी जब मदीना शरीफ जाएँ तो सबसे ज़्यादा आपने मस्जिद कुबा में नफल अदा करने। ऐसा बन अब आपने मेरे बाएं हाथ की तरफ देखना, आपको टॉप पर बड़ा पत्थर नज़र आ रहा है जी, बोले तो सही सर जी। उसके साथ है छोटा पत्थर, ये तकरीबन 10 से 15 फुट का वाया है। जब आप इसके ऊपर जाएंगे तो गार आपको नज़र नहीं आएगी, जो गार के अंदर होगा उसको बाहर नज़र आता है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो गार है जहाँ पर अल्लाह के नबी ने 3 दिन और 3 रातें क़याम किए। यहाँ पर कोई सड़क वगैरह नहीं बनी, ये बिल्कुल पैदल ऐसे ही चलने का है। वो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप आना चाहते हैं तो फजर की नमाज़ पढ़े, आपको गाड़ी इस तरफ उतारेगी, फिर ये साथ ही सड़क जा रही है। इसके साथ ही आगे थोड़ा सा कुछ और आगे जाएंगे तो पहाड़ शुरू हो जाएंगे। मैक्सिमम 4 से 4.5-5 घंटे लगते हैं। अब भाई साहबान आपने दुआ मांगनी है, किबले का रुख इस तरफ रखना है क्योंकि बैतुल्लाह इस तरफ है। आप सब ने पाकिस्तान के लिए खसूस बिलखसूस दुआ करनी है। जी ये हैं वो संगल पहाड़ियाँ आजा हरमे काबा के साथ से बिल्कुल शुरू होती हैं वो ये, और ये यहाँ तक आती हैं। और आप देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से लेके और यहाँ तक चलते हुए जो है ना वो आए थे, और फिर उनके पाँव जख्मी हो चुके थे। तो ये पहाड़ी इतनी ऊंची है, तकरीबन 2500 फुट ऊंची है ये जबल सौर। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधे मुबारक पर उठा के तो जो है वो उन्हें इस पहाड़ी के ऊपर लेकर गए थे। और आप ये देखें कि अगर हमने जाना हो तो हम सिर्फ 5 किलो का बैग उनके साथ उठा के नहीं चल सकते। तो क्या उस टाइम उनका जो है वो हिम्मत थी कि नबी को बचाने के लिए अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अपनी जो है वो अपने आप को जो है वो अल्लाह और उसके नबी की राह में जो है वो चले आए फिर जल्दी से बात वक्फ कर दिया अपने आप। मैं लास्ट व्यू आपको देना चाहूँगी यहाँ का। ये अब आगे ना इन्होंने होटल्स वगैरह बना दिए, लेकिन पहाड़ी क्लियरली विजिबल है पहाड़ी। उसी ना नंबर नोट। अच्छा जी, ये जो ऊंचाई है इसकी 2200 से 2500 फुट या 3000 फुट जो बताई जाती है, ये सतह समंदर से मतलब सी सरफेस से बताई जाती है इसकी, कि ये इतना जो है वो सी सरफेस से ये ऊंची है पहाड़ी।